नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे पर लगाई रोक, लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण निर्णय। गुजरात से राज्यसभा के 4 प्रत्याशियों के नामांकन, 27 फरवरी को होंगे चुनाव। और 3 महीनों में ही डभोई का ओवरब्रिज खस्ताहाल, आरएनबी ने कॉन्ट्रैक्टर से करवाई मरम्मत। आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर निर्णय सुनाते हुए बॉन्ड पर रोक लगा दी है। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को 6 साल पुराने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 5 जजों ने सर्वसम्मति से इस पर फैसला सुनाया। 2018 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6,337 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई। कांग्रेस को 1,108 करोड़ चुनावी चंदा मिला। इस मामले गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नामदार सुप्रीम कोर्टे 5 जजोनी બંધારણ બેન્ચે દેશના વિવિધ રાજકીય પક્ષોને ઇલેક્ટોરલ બોન્ડના નામે જે નાણાં મળતા હતા એમાં અપારદર્શિકતા છે, रिश्वत અને કમિશનની અને આની પારદર્શિકતાના અભાવ એટલે કે 19 ની એટલે કે માહિતી કાનૂન અધિકારનું પણ ઉલ્લંઘન છે। તમામ પાસા જોઈને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે ઇલેક્ટોરલ બોન્ડની આખી પ્રથાને નાબૂદ કરી છે, રદ કરી છે। મને એમ લાગે છે કે દેશના પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ 2014 ની અગાઉ જે મોટી વાત કરીને એટલે કે ખાતોમાંથી ખાવા દઈશ નહીં એવી મોટી સુખિયાની વાત કરીને ભ્રષ્ટાચાર સામે લડીશ પણ હકીકતમાં ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કંઈ કરીશ નહીં તે પ્રકારનો જે ખેલ કર્યો એ આજે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતે ખુલ્લો પડી ગયો છે। આજે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતે જે આખી આ ઇલેક્ટોરલ બોન્ડની પ્રોસેસ છે એ રિશ્વત અને કમિશનની પ્રોસેસ છે અને જે રીતે કોંગ્રેસ પક્ષના રાષ્ટ્રીય નેતા સન્માનીય રાહુલજીએ પણ આ સમગ્ર બાબતને રિશ્વત અને કમિશનની આખી યોજના કેવી રીતે ગોઠવી છે, સત્તાધારી પક્ષ ભાજપા કઈ રીતે આ સિસ્ટમમાં પોતાના કોર્પોરેટ મિત્રોના લાભાર્થે દેશની તિજોરી લૂંટાવીને અને જે રીતે ભાજપાની તિજોરી છલકાવી રહ્યા છે એ સમગ્ર બાબતને જે તે સમય પણ રજૂ કરી હતી અને આજે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતે પણ આ વાતને સંપૂર્ણપણે મોહર મારી છે। તેવા સંજોગોમાં હું આપના માધ્યમથી માંગ કરું છું કે ભાજપા સરકાર જે સિસ્ટમની અંદર ભ્રષ્ટાચાર ઘુસાડીને લૂંટનું તંત્ર આખું કર્યું, રિશ્વત અને કમિશનખોરીનું એ તંત્રનો આજે પર્દાફાશ થઈ ગયો છે। નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતે પણ આ મોટો જે ગેરકાનૂની રીતે પૈસા એકત્ર કરવાનું સિસ્ટમની અંદરનો એ આખો જે એમનો ખેલ હતો એ ખેલને પણ ખુલ્લો પાડી દીધો છે। મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે જે રીતે આ દેશની અંદર ચૂંટણી પારદર્શિકતા માટે સર્વોચ્ચ અદાલતે જ્યારે આ પગલાં લીધા ત્યારે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતના નિર્ણયને ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા જે સ્વાયત્તાને બદલે સરકારનું વાજિંત્ર બનવા તરફ જઈ રહ્યું છે એમાંથી એ પાછું આવી અને દેશના લોકતંત્રને સ્વાયત્તાની દ્રષ્ટિને સજી ધજીને એને ટકી રહે એ દિશામાં સર્વોચ્ચ અદાલતે જે આદેશ આપ્યો છે તેને ચૂંટણી આયોગ પણ પોતે ચૂંટણી કમિશન પણ એ દિશામાં કામ કરશે। સાથોસાથ કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરીએ છીએ કે ભાજપાની કેન્દ્રની સરકાર દેશના પ્રધાનમંત્રીશ્રી વાતો તો બહુ કરી પણ હકીકતમાં જ્યારે સર્વોચ્ચ અદાલતે ત્યારે તેમના નૈતિકતાની જવાબદારી તેમને દેશને કહેવું જોઈએ કે આ લૂંટનો મોડેલ કેવું હતું, આ સિસ્ટમમાં કમિશન અને રિશ્વતખોરીને અમે કેવી રીતે સિસ્ટમ બનાવી હતી એ તમામ બાબતની એમને નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારવી જોઈએ એવી કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરી છે। અને સર્વોચ્ચ અદાલતે પણ કીધું છે કે ઇલેક્ટોરલ બોન્ડના નામે જે લૂંટનો કારોબાર ચાલ્યો હતો એ તમામ બાબતો ખુલ્લી થવી જોઈએ, લોકોને જાણવાનો અધિકાર છે। અને કોંગ્રેસ પક્ષ ગર્વ સાથે કહ્યું છે કે માહિતીના અધિકાર દ્વારા આ દેશના સામાન્ય માણસને સશક્ત બનાવવાના વિશેષ જે કેન્દ્રની તત્કાલીન યુપીએ સરકાર ડોક્ટર મનમોહન સિંહજીના નેતૃત્વમાં યુપીએ ચેરપર્સન શ્રીમતી સોનિયા ગાંધીના નેતૃત્વમાં દેશમાં માહિતી અધિકાર કાનૂન આપ્યો હતો। આજે સર્વોચ્ચ અદાલતે આ કાનૂનને પણ આગળ વધાર્યો છે અને એનાથી દેશમાં વધુ પારદર્શિકતા આવશે। ત્યારે ચૂંટણી પંચની ફરજ બને છે કે તેઓ દેશના સામાન્ય માણસનો વિશ્વાસ રાખી વ્યવસ્થા ઉપર અને લોકતંત્રમાં વિશ્વાસ રાખે, તેના માટે ચૂંટણી પારદર્શક યોજવાની જે બંધારણીય ફરજ છે એનું એક પાલન કરે।
27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने आज गुजरात विधानसभा में अपने नामांकन दर्ज करवाए। राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात से भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा, गोविंद धोलकिया, मयंक नायक और जसवंत सिंह परमार को दावेदार बनाया है। इन चारों ने आज गुजरात विधानसभा में अपना नामांकन दर्ज करवाया। इस मौके पर विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया। ढोल नगाड़ों के ताल पर सभी उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी विधानसभा में पेश की है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी उपस्थित रहे। गुजरात में जेपी नड्डा को आयाती उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोविंद धोलकिया को मैदान में उतारा गया है। मध्य गुजरात से जसवंत सिंह परमार और उत्तर गुजरात से मयंक नायक को राज्यसभा भेजा जा रहा है। नामांकन दर्ज करवाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गांधीनगर पहुंचे। इस मौके पर गुजरात विधानसभा का माहौल जश्न जैसा देखा गया। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई सरिता क्रॉसिंग पर 3 महीने पहले बनाए गए ब्रिज में बीती रात स्पान के बीच गैप बढ़ जाने से कई वाहन चालक फंस गए। डभोई वडोदरा रोड पर सरिता क्रॉसिंग पर 3 महीने पहले ही 20 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ है, जबकि दूसरी साइड का काम अभी भी चालू है, लेकिन यहाँ वाहन व्यवहार दोनों साइड से शुरू कर दिया गया है। वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और यात्रा धाम चांदोद जाने के लिए इसी ब्रिज से गुजरना पड़ता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले VVIP काफिलों के लिए इस ब्रिज को आनन फानन में बना दिया गया है और ऐसे में ब्रिज में कई कमियां रह गई होने की बात सामने आ रही है। बीती रात ब्रिज से वाहन के गुजरते वक्त ब्रिज के 2 स्पान के बीच बड़ा सा गड्ढा पड़ जाने के चलते बड़ी दुर्घटना होते होते रुक गई, लेकिन इस वजह से करीब 50 जितने वाहन ब्रिज पर ही फंस गए। डभोई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को सुरक्षित रूप से ब्रिज पार करवाया और उसके बाद ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। घटना की जानकारी पाकर R&B विभाग के अधिकारी भी फौरन मौके पर पहुंचे। वडोदरा तरफना पहला અને બીજા સ્પાનની વચ્ચે અકસ્માતના કારણે જોઈન્ટ નીકળી જવા પામેલ છે, જેના ફોર્સના કારણે સ્લેબનો એજનો ભાગ ધીમે ધીમે કરીને તૂટેલ છે, જેને સરખું કરવાનું દુરસ્ત કરવાની કામગીરી હાલ એજન્સી દ્વારા હાથ ધરેલ છે, જેને આજે રાત્રે ચાલુ કરીને કાલ સવારે બને એટલા વહેલી તકે પૂર્ણ કરવામાં આવશે। अवधूत कंस्ट्रक्शन द्वारा किए गए इस ब्रिज कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। अवधूत कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार को भी फौरन बुलाकर ब्रिज की मरम्मत शुरू करवाई गई है, लेकिन 3 महीने में ही ब्रिज की इस खस्ताहाल स्थिति के चलते ब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कल ग्रामीण भारत बंद का ऐलान दिया गया है, जिसे आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है। हरियाणा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कल ग्रामीण भारत बंद का ऐलान दिया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री सागर रबारी ने भी सभी किसानों से आह्वान कर बंद में जुड़ने की अपील की है। पंजाब हरियाणाना खेडूतो अत्यारे टेकाना भाव माटे आंदोलन करी रह्या छे। बीजी 11 मागणीओ टेकाना भावनी साथे साथे छे। खेडूतोने दिल्ही आवता रोकवा माटे हरियाणा सरकारे तमाम सरहदों पर जबरदस्त बेरिकेडिंग कर्યું છે, રસ્તા પર ખીલા લગાવ્યા છે, પોલીસનો ખૂબ મોટો ફોર્સ ખડકી દીધો છે અને ખેડૂતો ઉપર ટીયર ગેસમાં સેલ છોડાઈ રહ્યા છે। દેશના વિવિધ 200 થી વધારે સંગઠનોના બનેલા સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ આ આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતોના સમર્થનમાં અને એમના આંદોલન કરવાના રસ્તા પરથી પસાર થવાના લોકશાહી બંધારણીય અધિકારનું હરિયાણા સરકાર દ્વારા જે ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે એના વિરોધમાં આવતીકાલે તારીખ 16 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગ્રામીણ ભારત બંધનું એલાન આપ્યું છે। ખેડૂત એકતા મંચ આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતો ઉપર થઈ રહેલા પોલીસ અત્યાચારો, ટીયર ગેસનો મારો અને એમને દિલ્હી પહોંચવાના બંધારણીય અધિકારના ઉલ્લંઘન સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવે છે અને આવતીકાલે અપાયેલા ગ્રામીણ ભારતના બંધના એલાનને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે। ખેડૂત એકતા મંચ ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને, એગ્રો દુકાનોવાળાઓને, સહકારી મંડળીઓને, APMCઓને, ખેત औजारों उत्पादन करता तमाम उत्पादकों ने, वेपारीओने नम्र विनंती करे छे कि खेडूतो उपर थई रहेला आ अत्याचारना सामे पोता ज्यां छे त्यां रहीने
પોતાનું સમર્થન વ્યક્ત કરવા માટે આવતીકાલના બંધના એલાનમાં જોડાય. સંપૂર્ણ ગ્રામીણ ગુજરાત આવતીકાલે સવારે 8 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી સંપૂર્ણ બંધ પાળે એવી ખેડૂત એકતા મંચની આપ સૌને અપીલ છે. આભાર. इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ઈસુદાન ગઢવી ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. સુપ્રીમ કોર્ટે ખૂબ જ અગત્યનો એક ચુકાદો આપ્યો છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક જે બોન્ડ છે એ ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડ ગેરસંવૈધાનિક છે, એટલે કે ગેરકાયદેસર. ખૂબ જ અગત્યનો ચુકાદો છે. આ ચુકાદાને આમ આદમી પાર્ટી આવકારે છે અને દરેક નાગરિકને, મતદારને એ જાણવાનો અધિકાર છે કે કોણે કઈ પાર્ટીને કેટલું ફંડ આપ્યું. મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ બોન્ડ એવું છે કે જેમાં એસબીઆઈ થ્રુ બોન્ડ જે આપવામાં આવે એમાં ખબર નથી પડતી કે કઈ પાર્ટીએ ને કોણે કેટલું ફંડ આપ્યું છે, અને એના કારણે એવું પણ બનતું હતું અથવા બનતું હોઈ શકે. અને એટલે જ નાગરિકનો અધિકાર છે કે જે કેન્દ્ર સરકાર અથવા તો રાજ્ય સરકાર જે નિર્ણય લે છે એ મતદારોના હિતમાં નિર્ણય લે છે કે પછી કોઈ ફંડ આપ્યું છે કંપની એના હિતમાં નિર્ણય લે છે. એટલે બહુ જ અગત્યનો ચુકાદો છે. આમ આદમી પાર્ટી એને આવકારે છે, સ્વીકારે છે અને દરેક નાગરિકને, મતદારને જે મતદાન કરે છે એને જાણવાનો અધિકાર છે કે કઈ પાર્ટીને, કઈ કંપનીએ અથવા તો કયા સંસ્થાએ કેટલું ફંડ આપ્યું છે. અને આ જે નિર્ણય છે એનાથી મને લાગે છે કે દરેક નાગરિકને અને દરેક મતદારને ખુશી પણ થશે અને એમનો જે હક છે જાણવાનો એ પણ એને મળશે. गुजरात के वडोदरा में हरणी बोट कांड में 14 लोगों की जान का भोग लेने वाली खोखली बोट फिर एक बार हरणी लेक जोन में तैरती हुई दिखाई दी. 18 जनवरी 2024 का दिन वडोदरा के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिन बन गया है. वाघोडिया रोड की न्यू सनराइज स्कूल के बच्चे खेलते कूदते हुए पिकनिक की मौज मनाने मोटनाथ के हरणी लेक जोन आए थे, जहां 14 की कैपेसिटी वाली बोट में 27 लोगों को बिठा दिया गया और राइडिंग के दौरान अचानक बोट पलट गई, जिसमें 12 मासूम बच्चे और 2 टीचर्स की जान चली गई. इस मामले 20 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. उसमें से 16 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं. इस मामले की जांच के लिए फिर एक बार आज हरणी लेक जोन में घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया गया, जिसमें 14 निर्दोष मासूमों का भोग लेने वाली खोखली बोट को फिर एक बार तालाब में उतारा गया और जानलेवा बोट को हरणी लेक जोन में घुमाया गया. प्लास्टिक की बोरियों में रेती भरकर मृतक बच्चों के अंदाजित वजन जितना वजन बोट में रखा गया और तालाब में बोट का राउंड लगाया गया और बोट कैसे पलटी होगी उसका अंदाजा लगाया गया. इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मौके पर एफएसएल के अधिकारी, क्राइम ब्रांच के अधिकारी, हरणी पुलिस स्टेशन के पीआई और दमकल विभाग के जवान मौजूद रहे. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय.
Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा के हरणी में घटी बोट दुर्घटना मामले 3 और आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। वडोदरा में 18 जनवरी को घटी बोट दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनमें से 16 आरोपी पहले ही पुलिस गिरफ्त में थे, जबकि 4 आरोपियों की तलाश थी। उनमें से 3 और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। देना चौकड़ी ब्रिज निकट से परेश शाह के बेटे वत्सल शाह, पत्नी नूतन शाह और बहू बैसाखी शाह को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर एसआईटी की सदस्य पन्ना मोमाया ने जानकारी दी है। 18 जनवरी को हरणी मोटला लेक है, वहाँ पे एक स्कूल के बच्चे थे, उनके साथ एक दुर्घटना घटी थी। उस अनुसंधान में हरणी पुलिस स्टेशन में हमने एफआईआर दर्ज की हुई थी और वो एफआईआर तहत हमने अभी तक 16 आरोपियों को अरेस्ट कर चुके हैं। आज हम और 3 आरोपी को अरेस्ट किया है हम लोगों ने। उनका नाम है वैशाखीबेन डॉटर ऑफ परेश भाई शाह, नूतनबेन वाइफ ऑफ परेश भाई शाह और वत्सल सन ऑफ परेश भाई शाह। 3 को हमने अरेस्ट किया हुआ है। उसमें से जो नूतनबेन है, उनकी हेल्थ मेडिकल कंडीशन की वजह से वो बड़ौदा में उनकी डॉक्टर को बताने आ रहे थे, तब हमको पता चला और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। ये जो वत्सल शाह है वो 10% के पार्टनर हैं और बाकी वैशाखीबेन और नूतनबेन वो 5% के पार्टनर हैं। टोटल 20% का इनका पार्टनरशिप है। आज हमने सुबह लेक जोन पे बोर्ड को बोयेंसी टेस्ट के लिए भी हमने एफएसएल को साथ में रख के टेस्ट किया हुआ है और आगे इन लोगों कहाँ रुके थे और कहाँ इनको शेल्टर मिला है उसकी भी हम तपास करेंगे और आगे की कार्रवाई चालू है। वो अभी बोएंसी टेस्ट आएगा, एफएसएल ने खुद टेस्ट किया है ये, और एफएसएल का रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही हम वो बता पाएंगे। आरोपी वडोदरा में देना चौक से एंटर होते थे, तब हमने देना चौकी पे उनको पकड़ लिया है। हमने उनके जो पर्सनल बैंक अकाउंट है वो भी सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। CRPC 70 का वारंट भी ले लिया है हमने और उनकी जो असेट्स है वो भी हम सीज करने के लिए कार्रवाई शुरू की। इसीलिए ही ये 3 भी उनको पता चल गया और ये 3 भी मेडिकल कंडीशन और ये वजह से ही यहाँ वडोदरा में आए हुए थे और हम जल्द ही हमारी टीम कार्यरत है और जल्द ही ये जो एक आरोपी बाकी उसको भी हम पकड़ लेंगे। जितने भी आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं वो कहाँ रुके थे उसकी हम तपास करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर आगे कार्रवाई करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में फार्मा कंपनी केडिला के CMD राजीव मोदी दुष्कर्म मामले आज अचानक पुलिस थाने में हाजिर हो गए। अहमदाबाद की जानी मानी फार्मा कंपनी केडिला के CMD राजीव मोदी के खिलाफ बल्गेरियन युवती ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी। तब से राजीव मोदी पुलिस की पकड़ से दूर थे, लेकिन आज अचानक राजीव मोदी 16 पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां उनका बयान लिया गया। राजीव मोदी से पुलिस ने 4.25 घंटे पूछताछ की। युवती द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब मांगे। जरूरत पड़ने पर राजीव मोदी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हाई प्रोफाइल माने जा रहे इस मामले में राजीव मोदी से पिछले कई वक्त से पूछताछ नहीं हो पा रही थी, जो आज अचानक पुलिस थाने में राजीव मोदी के पहुंचने के बाद की गई। इस मामले SIT हेड चिराग कोरडिया ने जानकारी दी। जो बल्गेरियन युवती ने जो फरियाद रजिस्टर करवाई थी 16 पुलिस स्टेशन में, उसके आईओ 16 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। राजीव मोदी को नोटिस दी गई थी। उस अनुसंधान में 8 बजे से सुबह से अभी तक उनकी पूछताछ चल रही है। फरियाद में जो तथ्य दिए गए फरियादी द्वारा उस तमाम मुद्दा पर हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में SOG टीम द्वारा सिरप के गोदाम में नशीले पदार्थ मिलने की जानकारी सामने आई है। वडोदरा के बाजवा गांव के रेलवे फाटक के पास सिरप के गोदाम पर SOG टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें जांच के दौरान 66 लाख कीमत की 367 पेटी नशीली सिरप बरामद की गई। हालांकि जांच के दौरान किसी आरोपी की धरपकड़ नहीं हो पाई है, लेकिन नशीले पदार्थ जब्त करने में टीम सफल हुई। पुलिस द्वारा सिरप के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और गोदाम को सील कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। हाल ही में खेड़ा जिले में नशीली सिरप पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। अब इस तरह का मामला वडोदरा में भी नजर आ रहा है।
कुछ लोग शहर में नशीली सिरप बनाने की फैक्ट्री लगाकर अवैध रूप से नशीली दवाओं का निर्माण कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग बाहर से सिरप मंगाकर और बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ऐसे अपराधियों पर एसओजी टीम सख्त नजर रख इन अपराधों को रोकती है। इसी तरह वडोदरा के बाजवा के गोडाउन में भी छापेमारी कर नशीले पदार्थ की बिक्री को रोका गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। गुजरात के राजकोट में 25 फरवरी को प्रधानमंत्री के हाथों एम्स के साथ साथ जनाना हॉस्पिटल, अटल सरोवर और स्मार्ट सिटी के लोकार्पण की भी संभावना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। 22 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रधानमंत्री के हाथों गुजरात में अलग अलग विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी, जिसमें राजकोट का एम्स, जनाना हॉस्पिटल, अटल सरोवर और स्मार्ट सिटी भी शामिल हैं। वैसे इन प्रोजेक्ट्स का 10% से ज्यादा काम बाकी होने की वजह से इस काम को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। वैसे तो लोकार्पण कार्यक्रम फाइनल नहीं है, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर ने 33 से ज्यादा इंजीनियर्स की नियुक्ति कर 10 दिनों में काम पूरा करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके चलते युद्ध स्तर पर कार्यवाही पूरी की जा रही है। अटल सरोवर और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों हो सकता है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपकर विकास कार्य पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। આપણા દેશના લોકપ્રિય વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જ્યારે રાજકોટની ધરતી ઉપર પધારતા હોય ત્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અનેકવિધ અલગ અલગ વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। એ અનુસંધાને રાજકોટનું જે નજરાણું કહી શકાય એવું સ્માર્ટ સિટી કે જે ગુજરાતનું સૌથી પહેલું એક સ્માર્ટ સિટીનો પ્રોજેક્ટ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ ગુજરાત સરકારની દેનથી અમે લોકોએ ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને એનું આજે હવે લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબના કરકમલોથી અટલ સરોવર અને સ્માર્ટ સિટીનો આખે આખો પ્રોજેક્ટ 25મી તારીખે અમે લોકોએ રાજકોટની જનતા સમક્ષ ખુલ્લું મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ। 2047નું ભારત કેવું હશે એને આવરી લેવામાં આવ્યું છે। નવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, નવી ટીપીઓ, નવી ટીપી, નવા રોડ રસ્તા, વિદેશમાં જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ એવા 200 ફૂટના રોડો ઇન્ટરનલ સ્માર્ટ સિટીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે। મારા ધ્યાનમાં આવ્યા મુજબ એક સર્કલ તો એવું છે કે જે આખું ક્રિકેટનું સ્ટેડિયમ જેવું તો એક સર્કલ સ્માર્ટ સિટીમાં મૂકવામાં આવ્યું છે। નવું રેસકોર્સનું ડેવલપમેન્ટ છે। એક વખત ખુલ્લું થઈ જશે પછી રાજકોટની જનતાને હું ખાતરી આપું છું કે તમને લોકોને જાવું ગમશે। આજથી વર્ષો પહેલાં જ્યારે રેસકોર્સનું જ્યારે આપણું આ હયાત રેસકોર્સ જ્યારે નિર્માણ પામ્યું એના કરતાં અનેક ગણું સારું અને ચડિયાતું, લોકોને મજા આવશે, પોતાના પરિવારજનો સાથે નવા રેસકોર્સમાં આનંદ માણશે। એવું અટલ સરોવર છે, એવું નવું રેસકોર્સ મહાનગરપાલિકા દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે। માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબના કરકમલોથી 25મી તારીખે લોકાર્પણ બાદ જે થોડા ઘણા નાના મોટા કામો જે બાકી છે, ખાસ કરીને અટલ સરોવરનું જે ચકડોળનું કામ બાકી છે, એ કામ પૂર્ણ થયે અમે લોકો ખુલ્લું મૂકશું। लोकसभा चुनाव से पहले ही गुजरात के भरूच में कांग्रेस पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भरूच बैठक पर सियासी जंग देखने मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने यहां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी लोकसभा के मध्यस्थ चुनाव कार्यालय खोलकर चुनाव कार्यवाही शुरू कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस पक्ष निष्क्रिय दिख रहा है। भरूच बैठक पर कांग्रेस के अग्रणी नेताओं की निष्क्रियता के साथ साथ भरूच जिला कांग्रेस के एक बड़े नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस पक्ष के नामांकित नेता आदिवासी इलाके में मजबूत पकड़ रखते हैं और कांग्रेस पार्टी में कई पद पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं और अब पक्ष से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दें, ऐसी चर्चा ने जोर पकड़ा है। अगर ये नेता केसरिया खेस धारण करते हैं तो आने वाले चुनाव में आदिवासी इलाके में चैतर वसावा के खिलाफ भाजपा मजबूत स्थिति में आ सकती है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium. 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है, जहां किसानों ने टोल नाका और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज 15 फरवरी को तीसरा दिन है। फसलों के लिए MSP की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए वे हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। किसानों ने आज पंजाब के 6 जिलों में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया। हरियाणा से लगती पंजाब की खनौरी और डब वाली बॉर्डर भी 3 दिन से बंद है। उधर आंदोलन को खत्म करवाने के लिए आज फिर 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में किसान नेताओं से मीटिंग करेंगे। 7 दिनों में दोनों पक्षों के बीच ये तीसरी मीटिंग होगी। इस बीच किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र को आवाज सुननी पड़ेगी, अन्यथा जो होगा ठीक नहीं होगा। हमारी आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग है और हम चाहते हैं कि PM मोदी उनसे बातचीत करें ताकि हम अपनी मांगों के समाधान तक पहुंच सकें। किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के CM मनोहर लाल ने कहा कि मांग उठाना और दिल्ली जाना हर किसी का अधिकार है, लेकिन मकसद देखना होगा। हमने पिछले साल ये सब देखा है, कैसे एक दृश्य बनाया गया और उन्होंने कई सीमाओं पर कब्जा कर लिया, जिससे सभी के लिए समस्याएं पैदा हुई। हमें उनके विरोध करने के तरीके पर आपत्ति है। ट्रैक्टर परिवहन का साधन नहीं है, वे बसों या ट्रेनों में आ सकते हैं। चर्चा लोकतांत्रिक तरीके से की जानी चाहिए ताकि समाधान तक पहुंचा जा सके। गुजरात क्रीड़ा मंडल वडोदरा द्वारा मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता में विजेता बने खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। वडोदरा में 90 साल से ज्यादा के अरसे से गुजरात क्रीड़ा मंडल चलाया जाता है, जो वडोदरा के बच्चों को अलग अलग खेल गतिविधियां सिखाता है। गुजरात क्रीड़ा मंडल के बच्चों ने मुंबई के थाने में आयोजित खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इन प्रतियोगिताओं में विजेता बनने वाले खो खो और लंगड़ी के खिलाड़ियों को गुजरात क्रीड़ा मंडल द्वारा मेडल और ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। અમારા સંસ્થાના ગુરુવારે આદ્ય ગુજરાત ક્રીડા મંડળના વસંત બળવંત કપ્તાન, જેમનો જન્મ 5 ફેબ્રુઆરી 1905માં વડોદરા ખાતે થયો હતો, તે દિવસે વસંત પંચમી જ હતી। એના થોડા સમય બાદ વસંતરાવ કપ્તાને ગુજરાત ક્રીડા મંડળની આ સ્થાપના કરી। એ જે સ્થાપના કરી એ સ્થાપના પણ એમને ફેબ્રુઆરી 1932માં કરી। આજે આ સંસ્થા 91 વર્ષથી વ્યવસ્થિત રોજ સાંજે 6 થી 8 દરમિયાન રમતગમત રમે છે। અમારે ત્યાં લંગડી, ખોખો, બાસ્કેટબોલ, રિંગ ટેનિસ
અને ઇતર એથ્લેટિક્સની જે રમતો છે તે આયોજન અમારું રોજનું થાય છે અને છોકરાઓ નિયમિત 6:30 થી 8 આ ग्राउंड पर आवे छे। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में वडोदरा के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल कर भारत का नाम रोशन किया है। 7 फरवरी से 11 फरवरी तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में तीसरे वाको इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के साथ साथ इराक, कजाकिस्तान, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, उज्बेकिस्तान, तुर्की, फिनलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जॉर्डन, एस्टोनिया, तजाकिस्तान, क्रोएशिया जैसे 15 देश के किक बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। भारत से किक बॉक्सिंग एसोसिएशन गुजरात के नेतृत्व में वडोदरा के 3 खिलाड़ियों ने भी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें दिया कोठी ने 2 गोल्ड मेडल, धीर शाह ने 1 गोल्ड मेडल और वेदांत दुबे ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बड़ौदा के साथ साथ गुजरात और भारत का नाम भी रोशन किया है। विजेता बने सभी किक बॉक्सर्स खिलाड़ियों ने अपनी जीत का श्रेय मास्टर जयेंद्र कोठी सर को दिया। मैं 3rd वाको ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गया था। किक बॉक्सिंग वाको किक बॉक्सिंग एसोसिएशन से मैं जयेंद्र सर के अंडर खेलता हूँ। मैं -28 और -32 कैटेगरी में खेला था, उसमें मैंने 1 गोल्ड जीता। मैं मेरे कोच जयेंद्र कोठी सर को मैं थैंक यू बोलूँगा, उनने मेरे पीछे मेरी हेल्प की। मैं मास्टर जयेंद्र फिटनेस क्लब से गई थी वाको गुजरात के अंडर में दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में किक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट था। 3rd वाको ओपन इंटरनेशनल था, जिसमें मैंने 2 कैटेगरीज में मेडल हासिल किए थे। मेरा दोनों में गोल्ड आया। कैटेगरीज थी -50 kg एंड -55 kg। ऑल ओवर इंडिया में से हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे और आउटर कंट्रीज में भी बहुत सारे थे, जिससे मतलब काइंड ऑफ थोड़ा फियर लगा कि हाँ बाहर की कंट्रीज है तो कंपटीशन कैसा होगा, एंड एंजाइटी भी थी। और लेकिन इस बार इंडिया ने अच्छा खेला। 7 to 11 फरवरी को दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में 3rd वाको इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। वहां पे 15+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। हमारे इंडिया में से वाको किक बॉक्सिंग एसोसिएशन गुजरात में से 20 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था और सभी प्लेयर मेडल जीत के आए हैं। इस टूर्नामेंट में बाहर की कंट्री थी तो परफॉर्मेंस भी उनका बहुत बढ़िया रहा। थोड़ा बहुत बच्चों में फियर रहा था कि बाहर के बच्चे हैं, बाहर के प्लेयर्स हैं तो उनका लेवल क्या रहेगा, लेकिन इस बार इंडिया के प्लेयरों ने वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेडल जीत के आए हैं। बड़ौदा में से मैं बात करूं तो मेरे क्लब में से यानी कि मास्टर जयेंद्र फिटनेस क्लब में से दिया कोठी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। धीर शाह उन्होंने भी 1 गोल्ड मेडल जीता है और वेदांत दुबे उन्होंने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के हमारे भारतवर्ष, गुजरात राज्य और बड़ौदा का नाम रोशन किया है। गुजरात के वडोदरा शहर कांग्रेस की न्याय यात्रा वार्ड नंबर 4 में पहुंची, जहां मेयर के वार्ड में जरूरी सुविधाएं न मिलने की शिकायत निवासियों द्वारा कांग्रेस नेता ऋतिक जोशी से की गई। हरणी बोट दुर्घटना को 1 महीना खत्म होने आया है, लेकिन अब तक आरोपियों को सजा देकर दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चों को न्याय नहीं मिला है। वहीं वडोदरा शहर कांग्रेस की न्याय यात्रा वार्ड नंबर 4 में पहुंची। यात्रा कमला नगर तालाब से शिवजी के दर्शन कर 2 मिनट का मौन रखकर आगे बढ़ी और देवनगर से होते हुए 7 किलोमीटर लंबी यात्रा खोड़ियार नगर पहुंची, जहां दुर्घटना में जान गंवाने वाले 12 मासूम बच्चों और 2 शिक्षकों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वार्ड नंबर 4 के निवासियों द्वारा कांग्रेस प्रमुख ऋत्विक जोशी को मेयर के वार्ड में सड़क की खस्ताहाल स्थिति, गटर, स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं न मिलने और निवासियों को उनका टैक्स रिफंड न मिलने की शिकायतें मिली। साथ ही वार्ड नंबर 4 में किसी तरह का विकास कार्य न होने की बात कही गई। साथ ही आवेदन किया गया कि वार्ड नंबर 4 की सभी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। वडोदरा न्याय यात्रा આજે વડોદરા શહેરના વોર્ડ નંબર 4માં છે। આ વોર્ડ નંબર 4 એટલે વડોદરા શહેરના મેયરનો વોર્ડ અને આ ન્યાય યાત્રામાં જ્યારે સ્થાનિકોને વચ્ચે વચ્ચે મળ્યા ત્યારે બધા આજે પણ આ વિસ્તારમાં 2 ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી ના મળે, લોકોને ટેન્કર મંગાવવી પડે, પાણીના જગ મંગાવવા પડે, રોડ રસ્તા બિસ્માર હાલતમાં છે, ડ્રેનેજની સમસ્યા છે।
25 વર્ષથી અહીંયા સત્તામાં ભાજપ છે અને આ વોર્ડમાં તો મેયર પોતે રહે છે તો પણ આ વોર્ડમાં આટલી સમસ્યાઓ છે. પરંતુ સાથે સાથે અમારો સૌથી મોટો વિષય જે હરણી તળાવમાં જે 12 નિર્દોષ બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યો અને જે 2 શિક્ષકોએ જીવ ગુમાવ્યો, આ માનવ સર્જિત હત્યાકાંડમાં જે કોર્પોરેશનના ભ્રષ્ટ અધિકારી અને આ ભાજપના શાસનમાં જે તે સમયે જે મેયર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર હતા એમની સામે પણ માનવ વધનો ગુનો દાખલ થવો જોઈએ. પરંતુ આજે મહિનો થવા આવ્યો પરંતુ આ લોકો સત્તાના નશામાં જે ભાન ભૂલ્યા, માનવતા ભૂલ્યા અને આજે આ 12 પરિવારોએ એમના બાળકો નથી ગુમાવ્યા, આખા વડોદરા શહેરે ગુમાવ્યા છે. ત્યારે કોંગ્રેસ पार्टी આ મુદ્દાને લઈને વડોદરા શહેરના વોર્ડે વોર્ડમાં અમે આ ન્યાય यात्रा કરીએ છીએ. गुजरात के गिर सोमनाथ के ऊना तालुका के गिर गढ़ड़ा में मारू राजपूत समाज के 31वें सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया. ऊना गिर गढ़ड़ा तालुका में मारू राजपूत समाज के भांजा गांव में खोडियार मंदिर निकट हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया. 31वें इस सामूहिक विवाह में 15 जोड़ी शादी के बंधन में बंधे. इस मौके पर विवाहिताओं को मारू राजपूत समाज द्वारा कई वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गई. इस मौके पर मारू राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह में शामिल हुए. मारू समाज के लोग अब भारत के साथ साथ विदेश में भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी सामूहिक विवाह में पूरा समाज एकत्रित होकर भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन करता है. गुजरात के गिर सोमनाथ के सूत्रापाड़ा में समस्त कारड़िया राजपूत समाज का 12वां सामूहिक विवाह भव्य रूप से आयोजित किया गया. श्री समस्त कारड़िया राजपूत समाज सामूहिक विवाह आयोजक मंडल सूत्रापाड़ा द्वारा 12वें सामूहिक विवाह का सुचारू आयोजन किया गया, जिसमें 16 जोड़े शादी के बंधन में बंधे. इस मौके पर समाज के अग्रणियों ने उपस्थित रहकर विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया. पैसा છે એનું ભણતરમાં શિક્ષણમાં ઉપયોગ કરીએ, બીજા આપણે રોજિંદા કાર્યસીમાં ઉપયોગ કરીએ. सूत्रापाड़ा कारड़िया राजपूत समाज समस्त कारड़िया राजपूत समाजना समूह लग्न समिति जे सूत्रापाड़ानी नवयुवानोनी समिति है तेना द्वारा दर वर्षे वसंत पंचमी सिवाय तारीख नहीं अमरु नक्की है कि वसंत पंचमी ने दिवसे अमरा समूह लग्न सूत्रापाड़ा मुकामे थाय छे. ते अनुसंधान आ 12मा समूह लग्न योजवामां आव्या. आजे 16 लग्न नव दंपति आज प्रभुता में पगला मांड्या है अने समग्र गिर सोमनाथ जिल्लाना तमाम समाजना ज्ञातिजनों साथे मळी आ समूह लग्न ने सफल करवा माटे सौ कोई हाजरी आपे छे. कुरीतियों को हटाकर पढ़ाई में आगे बढ़ने का संदेश इस मौके पर समाज के लोगों को दिया गया. साथ ही समाज के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और समाज का गौरव बढ़ाने वाले छात्रों का भी इस मौके पर सम्मान किया गया, जिसमें कारड़िया राजपूत समाज के अग्रणी बड़ी संख्या में शामिल हुए. આજે સમસ્ત કારડિયા રાજપૂત સમાજના સમૂહ લગ્નોત્સવમાં સન્માન સમારોહમાં મને લાગણી અનુભવ મારું સન્માન કરવામાં આવ્યું છે સભાઈ ભારત દ્વારા. હું અત્યારે વેરાવળ ડૉક્ટર અતુલ સર મેમોરિયલ હોસ્પિટલ ખાતે કાર્યરત છું. એમડીનો અભ્યાસ પશુપાલન યુનિવર્સિટી મેડિકલ કોલેજમાં કરેલો છે. આપણા સમાજના બધા યંગ લોકોને એટલું કહેવા માગું છું કે જે બી ક્ષેત્રમાં અને જેવી રીતે બી તેઓ આગળ વધે, મહેનત કરે અને સક્સેસ થાય તેવી શુભેચ્છાઓ. कारड़िया राजपूत समाज में शिक्षण और दीकरीओनुं शिक्षण आज कोईपण समाज 21मी सदी में शिक्षण ने प्रोत्साहन आपे छे, पण कारड़िया समाजे पण आज शिक्षण में एक मोटी क्रांति करी है. आ क्रांति एटली बधी है कि आज कोई पण घरनी अंदर दीकरो के दीकरी जन्मे ते ग्रेज्युएट सिवाय ओछामां ओछुं भणतर नथी एवो गौरव हूँ अखिल गुजरात कारड़िया राजपूत समाजनो प्रमुख छूं, ये नाते मने पण गौरव छे. उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक द्वारा कोतवाली ज्वालापुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया. हरिद्वार की कोतवाली ज्वालापुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय के समस्त रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर, रंजिश रजिस्टर, वाहन चोरी रजिस्टर समेत के अपराधों के रजिस्टर को वार्षिक निरीक्षण के दौरान जांचा गया. इस दौरान सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा थाना कार्यालय के साथ साथ हवालत परिसर का रखरखाव और साफ सफाई इत्यादि की जांच की गई. साथ ही कैंटीन का निरीक्षण भी किया गया. निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई उस पर भी पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए. इस मौके पर नशा मुक्ति अभियान के तहत नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंडा मरवाही में अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर और खरीदार
जीपीएम पुलिस के हत्थे चढ़ गए। छत्तीसगढ़ के जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी पर जीपीएम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस और साइबर की टीम गठित कर पूर्व सूचना के आधार पर अंतर्राज्यीय सीमा से राकेश पनिका को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अलग अलग जगह से 8 मोटरसाइकिल्स की चोरी की थी। इस मामले में चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले अब्दुल हलील को भी गिरफ्तार किया गया है। विगत कुछ समय से हाट बाजार के दिनों में, साप्ताहिक बाजार के दिनों में बाइक की चोरी परिलक्षित हुई थी और ऐसी सूचना पर लगातार प्रयास किया जा रहा था कि ये डिटेक्ट हो सके। और इसी घटनाक्रम में थाना पेंड्रा में 2 अपराध थे, जो कि 1 जनवरी माह का था और 1 फरवरी माह का था, जिसमें बाइक की चोरी हुई थी। और इस बाइक की चोरी की घटना के बाद में जो सूचना मिली थी और जो विवेचना के तथ्य थे, उसके आधार पर लगातार पता तलाश करने पर एक राजेश पनिका, जो लगभग 43 इयर्स का है, ये अमलाई का रहने वाला और एमपी का है, इसके पास बाइक एक बरामद हुई थी। सूचना की तस्दीक के आधार पर उसके स्टेटमेंट के आधार पर कई चीजें पता चली। वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा में विजुअल आर्ट शो का एक खास ग्रुप एग्जीबिशन वैलेंटाइन 24 आयोजित किया गया है। फरवरी का महीना यानी प्यार का महीना, प्यार के महीने के उपलक्ष्य में वडोदरा में ग्रुप एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। विजुअल आर्ट शो के इस एग्जीबिशन में वैलेंटाइन 24 के अंतर्गत खूबसूरत पेंटिंग्स प्रदर्शित किए गए। इस एग्जीबिशन में चित्रों के साथ ड्राइंग, डिजिटल फोटोग्राफ शामिल किए गए। ये एग्जीबिशन 20 फरवरी तक वडोदरा के हाई 10 गैलरी में जारी है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।